Welcome to Launchpad Education and to this extremely important video in which we are going to discuss all the missions undertaken by Indian Space Research Organization in 2019 and 2020. स्पेस साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज एंड इंडियन स्पेस एजेंसी दैट इज इसरो. इट इज नोन फॉर इट्स एक्सेलेंस और 2019 में इसरो ने काफी इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च किए. So we are going to discuss all these in this video. These are the missions that we are going to discuss. तो 2019 में इसरो ने माइक्रोसैट, 2 जीसैट सैटेलाइट्स, एमीसैट, रीसैट, चंद्रयान 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था 2019 का, कार्टोसैट, रीसैट 2B-R1, ये सभी सैटेलाइट्स और इंटरप्लैनेटरी मिशंस लॉन्च किए. इन्हें कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, इनका क्या पर्पस था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एज यू कैन सी हियर, डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट सैटेलाइट्स. PSLV or the Polar Satellite Launch Vehicle, GSLV, these are the two Indian launch vehicles used. GSLV is the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. तो इसरो पेलोड के बेसिस पे डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज करता है. सो दीज आर सम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स that are being used by ISRO or they were being used by ISRO in the past. Satellite Launch Vehicle, Augmented Satellite Launch Vehicle or the ASLV, Polar Satellite Launch Vehicle, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark II and Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III. इन satellite launch vehicles में difference क्या है? The most important difference is the payload mass that these satellite launch vehicles can carry. Payload का मतलब है जो चीज कैरी की जा रही है इन launch vehicles पे, that can be a satellite or anything else. So payload mass carried by this launch vehicle was 40 kg and so on. जितना advanced, जितना latest launch vehicle है, उतना ज़्यादा payload mass carry कर पाएगा वो. And GSLV Mark III can carry payload of 4000 kg. So for the most important missions like Chandrayaan 2, GSLV Mark III was used. Another difference is the fuel that is being used in these launch vehicles, whether it is solid fuel or it is solid and liquid fuel or it is solid, liquid and cryogenic fuel. This is a video on the missions launched in 2019 and 20. Still हमने थोड़ा सा overview लिया launch vehicles का because GSLV, PSLV ये terms बार बार आएंगी regarding the launch vehicles. Now we will be discussing all these missions one by one. Out of all these missions, Chandrayaan 2 is the interplanetary mission. Rest all the missions are satellites. There is another very important video, all interplanetary missions of Indian Space Research Organization. In this video, we have discussed Chandrayaan 1-2 Mars Orbiter mission and the upcoming solar mission, that is Aditya Gaganyaan, in which India is going to send some astronauts to space, and Shukrayaan, the mission to Venus that is planned by ISRO. The link of this video is in the description. Starting the discussion about the missions launched by ISRO, पहली सैटेलाइट है माइक्रोसैट आर. PSLV C-44 लॉन्चिंग व्हीकल को यूज करके माइक्रोसैट आर को लॉन्च किया गया. ये एक इमेजिंग सैटेलाइट थी. इमेजिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू इमेज द अर्थ. इमेजिंग ऑफ अर्थ कैन बी डन फॉर वेरियस पर्पसेस. ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए किया जा सकता है. देयर कैन बी मेनी पर्पसेस ऑफ इमेजिंग द अर्थ यूजिंग सैटेलाइट्स. But Microsat R is specifically for military purposes. Defense purposes के लिए इंडिया ने Microsat R को लॉन्च किया and for the organization Defense Research Development Organization और the DRDO. Usually जब भी डिफेंस पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं तो इसरो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं डाइवर्ज करता. एनिमी टेरिटरीज की ऑब्जर्वेशन के लिए, एनिमी टेरिटरीज की रिकॉनेसेंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए, मरीन सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का यूज किया जाता है एंड इसीलिए इसरो ने इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं शेयर की. सो दिस वाज द फर्स्ट मिशन ऑफ 2019 दैट वाज अंडरटेकन बाय इसरो. PSLV C-44 पर ही एक और सैटेलाइट लॉन्च की गई. दिस वाज कलाम सैट V2. ये एक स्टूडेंट सैटेलाइट थी. एक स्टूडेंट ग्रुप ने मिलकर सैटेलाइट को बनाया था. दिस वाज अ स्टूडेंट सैटेलाइट एंड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट एंड इसका पर्पस था टू स्टडी कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ नैनो सैटेलाइट. नैनो सैटेलाइट्स आर द वेरी स्मॉल सैटेलाइट्स और इस एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट सैटेलाइट को यूज करके जो भी रिसर्च की जाएगी, इट इज गोइंग टू हेल्प इन वेरियस फील्ड्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट. Another important fact is that this was the lightest ever satellite launched by India. ये सबसे हल्की सैटेलाइट थी और स्पेस किड्स इंडिया नाम के एक स्टूडेंट ग्रुप ने, चेन्नई बेस्ड स्टूडेंट ग्रुप ने इस सैटेलाइट को बनाया था.
In the recent years, ISRO is working with private industry as well as students to assemble satellites and other equipments for India's space missions. इंडियन स्टूडेंट्स का स्पेस साइंस में इंटरेस्ट बढ़े इसके लिए इसरो काफी सारे इनिशिएटिव्स लेती रहती है. So this satellite that was built by students themselves is important, Kalamsat V2. And remember, it was launched with Microsat in PSLV C-44 in the same mission. Next satellite that was launched by ISRO was GSAT-31. GSAT satellites or the geosynchronous satellites, these are a series of communication satellites launched by India. तो GSAT-31 इसी सीरीज में एक और सैटेलाइट थी और ये लॉन्च की गई आर्यान 5 VA247 लॉन्च व्हीकल से. एंड ये इंडिया का लॉन्च व्हीकल नहीं है, दिस इज अ लॉन्च व्हीकल दैट बिलोंग्स टू आर्यान स्पेस. आर्यान स्पेस एक मल्टीनेशनल कंपनी है एंड दुनिया की सभी कंट्रीज के लिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च करती है एंड इंडिया भी रेगुलरली आर्यान स्पेस की सर्विसेज लेता है. तो GSAT-31 लॉन्च की गई आर्यान 5 लॉन्च व्हीकल से एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन February 6, 2019 फ्रॉम फ्रेंच गयाना. फ्रेंच गयाना फ्रांस की ही टेरिटरी है एंड इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड फ्रॉम हेयर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड कोरू मैनी सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय आर्यान स्पेस और GSAT-31 को भी यहीं से लॉन्च किया गया. GSAT-31 इट इज अ पार्ट ऑफ GSAT एंड INSAT सैटेलाइट सीरीज. तो ये सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो हमारे घरों में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, वीडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, DTH, ये सब चलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके. और GSAT-31 इंडियन मेनलैंड और इंडियन आइलैंड्स के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एनेबल करेगी. GSAT सैटेलाइट्स दीज आर यूज्ड फॉर ऑडियो, वीडियो एंड डाटा ब्रॉडकास्टिंग. तो GSAT सैटेलाइट्स की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ यूजेस देख लेते हैं. GSAT satellites, they help the VSAT networks. They are helpful for television uplinks, digital satellite news gathering, DTH television services. तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है, DTH टेलीविजन सर्विसेज में इसका इस्तेमाल होता है. GSAT-31 इट हैज अ मिशन लाइफ ऑफ 15 years और ये सभी एरियाज कवर करेगी. इंडियन मेनलैंड के अलावा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के भी काफी हिस्से कवर होंगे. February 2019 में GSAT-31 लॉन्च की गई. इन January 2020 GSAT-30 was launched. तो ये लास्ट मिशन था इसरो का बिफोर दिस वीडियो वाज मेड. जनवरी 2020 में GSAT-30 लॉन्च की गई थी यूजिंग द सर्विसेज ऑफ आर्यान स्पेस अगेन एंड लॉन्च व्हीकल वाज आर्यान 5. इसे भी कोरू फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया एंड द एप्लीकेशंस ऑफ GSAT-30 आर सिमिलर टू GSAT-31. बेसिकली INSAT और GSAT सैटेलाइट्स का पर्पस कम्युनिकेशन है. तो फ्यूचर में भी रेगुलरली लॉन्च होती रहेंगी GSAT सैटेलाइट and you know the applications objectives of GSAT satellites now. अगली सैटेलाइट है एमीसैट और इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया. PSLV C-45 से इसे लॉन्च किया गया एंड इट वाज अ रिकॉनेसेंस सैटेलाइट अगेन फॉर डिफेंस पर्पसेस. Reconnaissance means observation and it is mostly used when enemy territories are observed secretly for defense purposes. बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सभी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं एंड इवन फॉर द सर्वेलेंस ऑफ एनिमी टेरिटरी. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को ऑब्जर्व करने के लिए. इंडियन लैंड बॉर्डर्स पे ड्रग स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करती हैं. सो एमीसैट इज अनदर सैटेलाइट जो इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी. एमीसैट कैन ऑल्सो मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो ह्यूमन एक्टिविटी के साथ साथ किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को भी एमीसैट डिटेक्ट कर पाएगी. अगेन इससे ज़्यादा इसरो ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स नहीं रिलीज की बिकॉज ये एक डिफेंस सैटेलाइट है. नेक्स्ट इज RISAT-2B. RISAT भी एक सीरीज है सैटेलाइट्स की एंड दीज आर रडार इमेजिंग रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स. रडार इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेडियो वेव्स एंड RISAT रडार इमेजिंग रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स की एक सीरीज है. उसी सीरीज में RISAT-2B लॉन्च की गई एंड इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग PSLV व्हीकल, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-46. RISAT सैटेलाइट्स के डिफरेंट पर्पसेस हैं लाइक वेदर सर्वेलेंस. इसरो ने 2009 में RISAT-2 लॉन्च की थी एंड दिस वाज बिल्ट बाय इजराइल और 2012 में RISAT-1 लॉन्च की थी. नाउ RISAT-1 इज नॉट ऑपरेशनल और RISAT-2B 2019 में लॉन्च की गई है. RISAT-2B कैन हेल्प इन वेदर सर्वेलेंस इन डे एज वेल एज नाइट एंड हेंस ये एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्पफुल होगी. बिकॉज RISAT-2B अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज की जा सकती है. इट इज ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रेंथन इंडिया सिक्योरिटी. इंडिया के लैंड और मरीन बॉर्डर्स पे बेटर सर्वेलेंस की जा सकती है. 2019 में RISAT-2B और RISAT-2B R1 ये दोनों सैटेलाइट्स RISAT सीरीज में लॉन्च की गई. 2 GSAT सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, GSAT-30 एंड 31 एंड 2 RISAT सैटेलाइट्स लॉन्च की गई.
Reset 2BR1 was launched using PSLV C48, and now you know it is a radar imaging Earth observation satellite. और similar applications हैं agriculture, forestry, disaster management. इसके अलावा भी कुछ applications हो सकती हैं, and uses of these satellites are not limited to what we are discussing here. नेक्स्ट सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च की है कार्टोसैट 3। इसे भी PSLV व्हीकल से लॉन्च किया गया एंड इट वाज PSLV C47। कार्टोसैट सैटेलाइट्स भी एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लाइक रीसैट, एंड कार्टोसैट 3 satellite is having high resolution imaging capability. It is an earth observation remote sensing satellite. Remote sensing means observing something, capturing information about something without having direct contact. That means from a distance observing something. So Cartosat series of satellites, these are Earth observation remote sensing satellites. Remote sensing is the science of obtaining information about objects or areas from a distance. It can be from an aircraft or satellite or using drones. Cartosat is a series of satellites for Earth observation. अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए 3 तरह की सैटेलाइट्स यूज की जा रही हैं प्रेजेंटली. वन इज कार्टोसैट, सेकंड इज रीसैट एंड द थर्ड वन इज रिसोर्ससैट. 2019-20 में रीसैट और कार्टोसैट लॉन्च की गई. रिसोर्ससैट वाज नॉट लॉन्च्ड इन दीज इयर्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इन दिस वीडियो. बट ये एक और सीरीज ऑफ सैटेलाइट है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन. इसके अलावा मरीन ऑब्जर्वेशन के लिए, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन के लिए भी कुछ सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं. Whenever they are launched, we will discuss about them. Moving on to the most important mission of 2019, it was the Chandrayaan-2. Chandrayaan-1 was launched in 2008 and in July 2019 Chandrayaan-2 was launched. इन दोनों मिशंस का पर्पस था मून के बारे में ज़्यादा जानना, how it was formed, whether there is water on moon, what is the kind of atmosphere of moon. तो ये सभी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया के डिफरेंट स्पेस एजेंसीज काफ़ी मिशंस अंडरटेक कर रही हैं, कर चुकी हैं. एंड Chandrayaan-2 was launched to expand this knowledge about the moon by studying the topography or the physical features of the surface of the moon. Seismography, that is to study the moonquakes, like Earth पे earthquakes आते हैं उसी तरीके से moon पे क्या एक्टिविटी होती है. Characteristics of topsoil of moon, composition of the atmosphere of moon. All these things are to be studied so that we can know more about the origin and evolution of the moon. एंड सभी स्पेस मिशंस का स्पेसिफिकली जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं, मिशन टू द मार्स, मिशन टू वीनस, एनी अदर प्लैनेट, वी आर ट्राइंग टू नो द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ दीज प्लैनेट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडीज. चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों मिशन इसी पर्पस से लॉन्च किए गए. चंद्रयान 1 वाज एन ऑर्बिटर मिशन, दैट मींस इसे मून के आसपास ऑर्बिट करना था. इन चंद्रयान 2 इसरो वेंट अ स्टेप अहेड. इसरो ने ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी चंद्रयान 2 में लॉन्च किए. लैंडर का नाम था विक्रम और इसे मून के सरफेस पे लैंड करना था एंड देन इसे एक रोवर वहां पे प्लेस करना था जो मून के सरफेस पे ट्रेवल करके कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता. रोवर का नाम था प्रज्ञान. द नेम ऑफ द लैंडर विक्रम, इट वाज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई हु इज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम. एंड प्रज्ञान का मतलब संस्कृत में है विजडम, सो रोवर का नाम था प्रज्ञान. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसरो को लैंड करना था मून के साउथ पोल पे. एंड साउथ पोल वो एरिया है मून का जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया. किसी भी कंट्री ने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं की है. मून पे अगर कुछ लैंडिंग्स भी हुई हैं इन द पास्ट तो वो साउथ पोल पे नहीं हुई. और साउथ पोल को एक्सप्लोर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ रीजन दैट इज परमानेंटली शेड्यूल्ड फ्रॉम सनलाइट. यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती और यहाँ पे पानी होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं. एंड विक्रम की लैंडिंग किसी भी इंडियन स्पेसक्राफ्ट की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होती. सॉफ्ट लैंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में जो व्हीकल लैंड करता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. सो फर्स्ट टाइम इसरो ये ट्राई कर रहा था कि विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके एंड मून के सरफेस पे प्रज्ञान को प्लेस किया जा सके. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया. चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जब मून से 2 किलोमीटर की दूरी पे था तो उसका कॉन्टैक्ट इसरो से टूट गया. But since orbiter, lander, Vikram, they were different parts of this mission, so it was not a complete failure. And as per ISRO, 90 to 95% of the mission objectives have been already accomplished. जो orbiter था वो as per plan moon को orbit कर रहा है and it will enrich our understanding of the moon's evolution, mapping of minerals, water molecules in the polar regions. तो जो चीजें हम जानना चाहते थे ऑर्बिटर वो हमें पता लगाने में मदद करेगा एंड इट इज ऑलरेडी डूइंग दैट. बट वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द विक्रम और ये हमें श्योर नहीं था कि विक्रम कहाँ चला गया. तो नासा कुछ इमेजेस रेगुलरली रिलीज करती है एंड दिस वाज वन ऑफ द इमेज दैट वाज रिलीज्ड बाय नासा, द अमेरिकन स्पेस एजेंसी. और एक इंडियन इंजीनियर थे षणमुग सुब्रमण्यम, उन्होंने नासा को ये लीड दी कि शायद इस इमेज में इंडिया का चंद्रयान 2
का विक्रम लैंडर क्रैश्ड है एंड नासा ने एक्सेप्ट किया. So Indian helps find NASA, India's moon rover that was crashed into the surface. तो अब हमें ये पता है कि विक्रम लैंडर मून में क्रैश कर गया था और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई. There are 3 other countries that have done soft landing on moon. USA, USSR और चाइना. इन 3 कंट्रीज ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है. इंडिया नेक्स्ट चंद्रयान मिशन लॉन्च करेगा 2024 में, चंद्रयान 3, और इसके लिए जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा से ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट हो चुके हैं और इंडिया दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा एंड होपफुली वी विल बी सक्सेसफुल इन 2024. चंद्रयान 2 वाज वन ऑफ द इंटरप्लैनेटरी मिशंस. इसके अलावा जो इसरो ने लॉन्च किए हैं इंटरप्लैनेटरी मिशंस और जो प्लान हैं उनके बारे में यू कैन नो मोर इन दिस वीडियो. द लिंक ऑफ दिस वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and share this video if you think this can help somebody in their preparation. Thank you for watching and have a good day.